اتواں کے بیہر اسلام آباد وٹھے ہلوں تھا پارلیمنٹ ہاؤس باہراں صحافین جے احتجاج میں پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گالائے رہا ہے۔ ماضی کی طرح جیسے ہم نے مل کے ایوب خان کے کالا قانون کو ختم کیا تھا، جیسے ہم نے ضیاء الحق کے دور پہ جو پابندیاں لگائے تھے ان کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے وزیر اعظم بنتے ہوئے سارے ختم کیے تھے، اور جیسے ہم نے مل کے مشرف کے جو بھی پابندیاں تھے، صدر زرداری جیسے ہی صدر بنے ہم نے وہ سارے پابندیوں کو، سارے کانے قانون کو ایک ایک کر کے اپنے قانون سے، اپنا آئین سے صاف کیا تھا 18ویں ترمیم کی صورت میں۔ آج بھی اس ملک میں پیکا کا قانون ہے جس کا پاکستان پیپلز پارٹی پیکا کا قانون کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور یہ قانون جو بننے والا ہے یہ آزاد صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے، یہ جمہوریت پہ ایک ڈاکہ ہے، مگر ساتھ ساتھ آزاد عدلیہ پہ بھی ایک حملہ ہے۔ آپ سے آپ کا اپیل کا حق چھینا جا رہا ہے، یہ ایک معاشی ڈاکہ بھی ہے، معاشی حملہ ہے، جو صحافیوں سے اپنے روزگار چھیننے کی کوشش ہے، اتنا بڑا فائنینشل برڈن ڈال کے معاشی قتل کرنے کی کوشش ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف یہاں آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم پارلیمان میں جا کے آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور آپ کی تنظیم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیمیں ملک بھر میں جہاں آپ احتجاج کا کال دیں گے وہاں شہید بھٹو اور شہید بی بی کی جیالے آپ کے شانے بشانے کھڑے رہیں گے۔ اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو پی ایم ڈی اے کا جو پروپوز لا ہے، اس کو پہلے ایک آرڈیننس کی شکل میں لانے کی کوشش ہوئی، اس آرڈیننس کے ڈرافٹ پہ لوگوں نے اعتراض کیا، اب حکومت کہتی ہے کہ اس آرڈیننس کے ڈرافٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آپ نیشنل اسمبلی کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ابھی تک حکومت نے ہمارے ساتھ تو کوئی ڈرافٹ شیئر نہیں کیا، کیا بینگ ویری پرومیننٹ اپوزیشن لیڈر کوئی ڈرافٹ آپ کے سامنے آیا ابھی تک؟ جو ڈرافٹس ہمارے سامنے آئے ہیں وہ جو آرڈیننس رات کے اندھیرے میں قوم کی پیٹھ پیچھے نکالا گیا وہی ڈرافٹ ہے، کوئی ہمارے ساتھ ایسا کوئی بات چیت نہیں کیا گیا ہے، نہ یہ کوشش کیا گیا ہے کہ ہمارا اعتراضات دور کرے، آپ کے اعتراضات دور کرے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، وہ زبردستی یہ قانون پاس کروانا چاہ رہے ہیں، مگر اگر وہ خزانہ خواستہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا پیپلز لیبر فور جو ہے بیورو جو ہے اور لطیف کھوسہ صاحب آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی اگر خدا نہ خواستہ یہ کالا قانون بنتا بھی ہے تو ہم فوراً عدالت کے رخ کریں گے اور اس کو چیلنج کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اطلاع کے مطابق آپ کے خیال میں حکومت نیشنل اسمبلی سے اس بل کو پاس کروا سکتی ہے، لیکن سینٹ میں پھر کیا ہوگا؟ ہمارا جو شک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا میجورٹیز کو سائڈ سٹیپ کروانے کے لیے وہ جوائنٹ سیشن سے پاس کروانا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ جوائنٹ سیشن نہیں تو وہ دوسرا جوائنٹ سیشن بلا کے اپنا بروٹ فورس سے کوئی تفصیلی ڈبیٹ کے کیا بغیر پاس کرانا چاہ رہے، لیکن یہ ہمارا شک ہے، کوئی ثبوت ابھی تک ہمارے پاس اچھا یہ بتائیں کہ آج پریزیڈنٹ نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرنا ہے، تو ابھی آپ جائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس میں، تو وہاں پر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ہمارا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اس سیشن میں احتجاج کریں گے۔ ایک جو یہ آزادی صحافت پر، اظہار خیال پر حملے کر رہے ہیں، اور دوسرا جو وہ حق روزگار پہ ڈاکہ مار رہے ہیں، اس لیے وہ آپ کے حق روزگار پہ بھی ڈاکہ مار کے آگے چلے ہیں، اور 20,000 ایسے خاندان ہیں جو ایک ناجائز عدالتی فیصلہ کی وجہ سے بالکل آپ کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو ان 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم
इस हुकूमत के इस सेशन में एहतजाज करके अपना पॉइंट नोट भी करेंगे। ये जिन लोगों को नौकरियों से निकाला गया है रिसेंट पास्ट में, क्या इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको पीपल्स पार्टी के दौर में नौकरियां दी गई थी? सर, ये किस किस्म का इल्ज़ाम है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जब भी हुकूमत में आते हैं वो रोज़गार दिलवाती है। तो पाकिस्तान में जिनको रोज़गार मिला है ज़्यादातर वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको रोज़गार दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा सियासी कारकुन है। जब आप नौकरी पेशा हो जाते हो, आपका सियासी ताल्लुक भी ख़त्म हो जाते हैं। और इन सारे लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है ये पहली बार नहीं, दूसरी दफ़ा हुआ है। पहली 90s के दौर में इनको रोजगार से निकाला गया, तब वो 30 साल के थे। फिर उनको बहाल किया गया, एक बार फिर उनको नौकरी से निकाला गया, अब वो 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कौन आदमी जो 50 साल का हो जाता है एक नया कारोबार शुरू कर सकते हैं? वो इस मुआशी बहरान में जब सब मान रहे हैं कि महंगाई इंतहा पे है, बेरोजगारी गुर्बत तारीखी सतह पे है, इस किस्म का जुल्म करने का तो क्या बनता? अगर हम साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल कर सकते थे तो इसी पार्लियामान ने उन 20,000 खानदानों को बहाल किया है। उनके हक रोजगार पे, आपके हक रोजगार पे हम ये हुकूमत को डाका मारना नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कुछ दिन पहले आपने नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स की एक मीटिंग की थी। उसमें बहुत से जो सहाफ़ी हैं आपने उनकी बात सुनी थी जिन पर रिसेंट पास्ट में हमले हुए थे। उसमें असद तूर साहब भी थे, मतीउल्लाह जान साहब भी थे, उसमें अफसार आलम साहब भी आए, आसमा शराजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी बात की। उस मीटिंग में आपको पुलिस की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सी एश्योरेंसेस करवाई गई थी। कुछ हमें उसके बारे में आप बताएंगे कि फॉलो उसका क्या है? सारे जो फॉलो अप हुए हैं, एक मजीद इंफॉर्मेशन कमेटी में भी मीटिंग हुआ है, हमारे सब कमेटीज में भी इंटरेक्शंस हुए हैं, और मैं इतना कह सकता हूं कि अनसैटिस्फैक्ट्री है। वो इसलिए कि जिनके खिलाफ ये हमले हुए थे वो मुतमिन नहीं है। तो जब तक वो मुतमिन नहीं होंगे हम मुतमिन नहीं हो सकते हैं। हमने उस मीटिंग में और एक खत भी लिखा था एक इदारे को, और हमने अपना खत और अपना एतराज़ात वहाँ पहुँचाए थे। बिलावल साहब, जब आप पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, ये इस प्रपोज लॉ पर आप तनकीद करते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं वो काउंटर क्रिटिसिज्म में ये कहते हैं जी कि सिंध में भी सहाफ़ियों के लिए हालात बड़े ख़राब हैं, वहाँ पर भी बड़े हमले होते हैं, तो आप उसकी बात क्यों नहीं करते? मैं बिल्कुल करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि कोई एक सूबा नहीं है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ सहाफ़त करना इस मुल्क में मुश्किल नहीं है। मैं सिंध की हद तक इतना कह सकता हूँ कि जो जुल्म होता है या होगा वहाँ, जैसे यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़े हैं, वहाँ भी हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। जो भी हमारे बस की बात है उनकी मदद करने में, उनके साथ देने में हम करने को तैयार हैं। मगर हमें सब मिलके इस पूरे मुल्क में जो भी सहाफ़ियों के साथ जुल्म और ज़्यादती होता है इनको रोकना चाहिए। और सिंध में जो हमारा रीजनल सहाफ़ी हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, और उनका जो भी एक इंसिडेंट होता है वो मुल्क और कौम के सामने लेकर भी आते हैं। यहाँ पर आपके आने से पहले बात हुई थी, जो हमारे RIUJ के ये धरना एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं अफजल भट्ट साहब, वो हमें रिमाइंड करवा रहे थे कि 2007 में 2007 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी हमारे धरने में तशरीफ़ लाई थी। उसके बाद से मैंने देखा कि आप पिछले साल भी आप आए थे, हमारा इसी जगह पे धरने में आए थे, आज आप फिर आए हैं। तो ये जो एक ट्रेडिशन है, आप क्या समझते हैं कि इस पर आप पार्लियामेंट के अंदर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं आपसे ये सवाल ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरपर्सन की हैसियत से कर रहा हूँ, आप मीडिया फ्रीडम और जो दीगर पाकिस्तान में इस वक्त लॉयर्स कम्युनिटी के जो कंसर्न्स हैं उस पर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुत्तहद कर सकते हैं?
आई थिंक कि जहाँ तक ये मीडिया की बात है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही स्टांस है, और जहाँ तक दूसरे इश्यूज हैं, हमें सारे इश्यूज जो मुल्क और कौम के फ़ायदे में हैं उन पे जॉइंट ही प्रपोजल रखना चाहिए। और हमारा जो पार्लिमानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है वो शहबाज शरीफ साहब है, और वक्तन फ़वक्तन वो हमें ऑन बोर्ड लेते हैं इशू टू इशू। शहबाज शरीफ साहब से आपके ताल्लुकात कैसे हैं? मेरे तो सारी ऑपोजिशन जमातों के साथ ज़बरदस्त ताल्लुकात है। आपने क्या सुना? मैंने सुना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से कुछ ताल्लुकात आपके पहले अच्छे थे, आप नहीं? मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। वो हम ना सिर्फ ये हमारा एक नस्ल का नहीं, मुसलसल हमारे बड़ों के साथ भी थे, और इंशाल्लाह हमारा आने वाले नस्ल के साथ करेंगे। सियासत में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ये तो होता रहता है, लेकिन मेरा कोई ज़ाती इशू नहीं है मौलाना। अच्छा, आसमा शिराजी साहबा जो है वो भी कोई बात बिल्कुल आपको सवाल करना चाहती है? बिल्कुल, वुमेन्स एम्पावरमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक सेकेंड, ये माइक को पकड़े ताकि ये माइक दोनों साथ साथ हो ताकि जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। जी वो कह रही है आज टीवी का माइक रहने दे, पर बाकी भी हम चलाएंगे ना, वैसे चलेगा नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामेंट के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर ये एक मिनट आसमा क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहे हैं और रात को चलना है भाई, और ये नहीं वो कह रहे हैं कि तमाम टीवी चैनल ने क्योंकि आज का लोगों पीछे कर ले। हाँ ठीक है, मैं इंतजाम करती हूँ। अब ठीक है, चलो ठीक, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इस वक्त सहाफ़ियों के धरने से, जो कि पार्लियामेंट के बाहर जारी है, वहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ। और ये बहुत अहम मौका है कि जब हम यहाँ पे बैठे हैं उस कानून के हवाले से जो कि अभी तक प्रपोज्ड है, और अभी तक उसको सिर्फ उसका मुसवदा पेश करने की कोशिशें की जा रही है। वो काला कानून जो कि मीडिया की आज़ादी को और मीडिया के जो तमाम इस वक्त जो हमारा आज़ादी राय है उसको सल्ब करने की एक कोशिश होगी। यहाँ पे सारे सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, PF यूजेज हैं, RI यूजेज हैं, जितनी यूजेज हमारी सहाफ़ियों की मुंतखब यूजेज हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो चुनतखब हैं, और चुनतखब का ही दौर है, लेकिन हम मुंतखब की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफ़ियों के लिए बात की है, सहाफ़ियों की आवाज़ के लिए। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, जब हम पाबंद थे, पाबंद सलासिल थे, जब हमारे बोलने पे पाबंदी थी, मोहतरमा यहीं आई थी, और हम सबके साथ उन्होंने उस वक्त भी यकजहती की थी इस्लामाबाद के अंदर। तो मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि इस सिलेक्टिव, क्योंकि इन्होंने सिलेक्टेड कहा था सबसे पहले, तो इस निज़ाम के बारे में उनकी अब क्या राय है, क्योंकि ये मज़ीद आगे बढ़ता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम बिलावल साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिलावल साहब, मैं एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हामिद मीर साहब भी, बाकी हमारे जितने सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी मौजूदगी में। ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये जो काला कानून जिसके लिए हम सब एहतजाज कर रहे हैं, ये उस मंजिल की तरफ एक सफ़र है जो हुकूमत ने शुरू किया है, सिंगल पार्टी सिस्टम या मज़ीद आमरीत की तरफ, ये उसकी तरफ एक कदम है? मैं समझता हूँ कि ये एक नया कानून ज़रूर है, लेकिन ये इनका पहला कोशिश नहीं रहा है, और पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि हर वक्त का जालिम, हर वक्त का आमिर ने ये कोशिश की कि पाकिस्तान की सहाफ़ी का आवाज़ बंद करने का, पाकिस्तान का मीडिया का कमज़ोर करने का, लेकिन वही मीडिया बाद में जाके उन आमिरों के, उन जालिमों के अखिलीस हीर साबित हो चुके हैं। आपने देखा किस तरीके से मुशर्रफ ने मीडिया के साथ जुल्म किया, और फिर किस तरीके से उसी मीडिया पे उसके खिलाफ, उसके आमरीत के खिलाफ मुहिम चलाया गया। जितना जुल्म ज़िया उल हक करता था, उतना बहादुरी के साथ पाकिस्तान का सहाफ़ी सच के साथ
खड़ा रहता था। और ये एक नया काला कानून है। हम इस नया काला कानून को भी नहीं मानते। हम समझते हैं कि अगर ये कानून बनता भी है तो पाकिस्तान के सहाफियों में इतना दम है जिन्होंने माजी में मुशर्रफ को शिकस्त दिलवाया, जिन्होंने माजी में आमिर मुशर्रफ को शिकस्त दिलवाया, वो इस कठपुतली को और इस कठपुतली के सारे काले कानून को खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। ये बिलावल साहब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ज़ाहिर सहाफ़ी तो खड़े हैं, हर दौर में पाबंदियां सियासतदानों ने और जमहूरियत पसंद सियासतदानों ने बर्दाश्त की हैं, लेकिन एक इल्ज़ाम अपोजिशन के सर पे भी इस वक्त जा रहा है कि अगर अपोजिशन इकट्ठी होती, एक प्लेटफॉर्म पे होती, तो शायद ये जो सिस्टम इस वक्त लाने की कोशिश की जा रही है वो इतना आसान ना हो जाता जो कि इस वक्त है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इस हुकूमत की लेजिटिमेसी की बात है, जहाँ तक इस मुल्क में जमहूरियत की बात है, जहाँ तक इस मुल्क में आपका आज़ादी की, मीडिया का आज़ादी की बात है, तो सब एक पेज पे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है। हम समझते हैं कि कोई वजह नहीं है कि आपको या मुझे या पाकिस्तान का आम आदमी को, इस वज़ीर आज़म को एक और दिन भी वज़ीर आज़म बर्दाश्त करने का। वो कैसे? इसलिए हमने इसी पार्लियामान के फ्लोर पे जहाँ से वज़ीर आज़म इमरान खान का मेजॉरिटी साबित करके वो वज़ीर आज़म बना, उसी फ्लोर से हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर मुंतखब करके ये दिखा दिया है कि अदम एतमाद जो एक जमहूरी हथियार है, वो जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके हम इस सिलेक्टेड का जो दौर है ख़त्म कर सकते हैं। और मेरा आज भी यही अपील है जो मैं उन दिनों में कहता था हमारे दोस्तों से कि इस मौक़िफ़ पे अगर हम सब मिल के आ जाएं तो या हम इसको फौरन घर भेज देंगे या इतना हिला के रख देंगे कि वो इस किस्म की जुल्म नहीं कर सके। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? कोई ना कोई नवाबजादा नसरुल्लाह खान तो पैदा करना होगा जो कि सर, नवाबजादा नसरुल्लाह खान का बेटा मेरा साथ है, इधर ही खड़ा था। आपका एहतजाज में शामिल है और हमने बहुत की कोशिश की। असूलन जो पीटीएम का हेड होता है उनका ये इम्पार्शल ऐसा कोई रोल अदा करना चाहिए, लेकिन हमने वहाँ जो उनके साथ बैठ के रिटन में तय किया, जो हमने हर मीटिंग में कहा, जो हमने उनसे अलग होने के बाद भी कहा, अब मैं इंशाअल्लाह ताला हर डिस्ट्रिक्ट में जाके जगह जगह पहुँच के अवाम के सामने भी रखूँगा कि हम इमरान को निकालना चाहते हैं। हम इस सिलेक्टेड दौर को ख़त्म करके एक दरवाज़ा खोलना चाहते हैं एक नया सियासत के लिए, एक वो सियासत जो अवामी नुमाइंदगी पे यकीन रखे और जो फैसले अवाम के नुमाइंदे करेंगे वो अवाम के लिए, अवाम के मुस्तकबिल को ज़रूर सोच के वो फैसले करेंगे। आपको लगता है कि जमहूरियत पे शबखून मारने की एक तैयारी है जिसका पहला निशाना सहाफ़ी है, करना क्या चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये एक तसलसल है, ये मुसलसल होता रहता है। ये हर वक्त एक कोशिश है सारे वो क़ुव्वतों से जो नहीं चाहते हैं कि इस मुल्क में यहाँ के शहरी आज़ाद हो, यहाँ के शहरी अपने आज़ाद तरीके से वोट दें, यहाँ के शहरी अपने आज़ाद तरीके से सोचे, यहाँ की शहरी अपने आज़ाद तरीके से बोले। हमेशा इस सच के ख़िलाफ़, इस आज़ादी के जो मुखालिफ है वो अपनी कोशिश करते रहते हैं। हमें अपना कोशिश जारी रखना है। हमें अपना जमहूरी स्पेस किसी को सीट नहीं करना चाहिए। हमें मीडिया में भी वो स्पेस नहीं सीट करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा वो पार्लियामान जो हमारे सामने है, अगर पाकिस्तान के सियासतदान अपना स्पेस उस फ्लो पे छीनने शुरू कर दे तो कोई और हमारा स्पेस में मुदाखलत नहीं कर सकेगा। तो हमारा ये मेहनत होगा, हमारा ये कोशिश होगा, हमारा ये जद्दोजहद होगा कि जमहूरियत के लिए जो स्पेस है, जो अवाम का स्पेस है, वो अवाम के पास वापस ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने बात की हमसे और इस बारे में। जी 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 मैं आ रही हूँ। आप लोगों का माइक कौन सा? आप लोगों का माइक बताइए। कैसे हो आप? खैरियत से हो? सर आप खैरियत से हैं? आपने बड़ा बहादुरी के साथ इनके
बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लोग हैं उनका बस मुकाबला आप किया लोगों है। से हिम्मत मिलती रहती है जी। वेरी काइंड। आवाज़ आपको सही आ रही है? हाँ, इसमें आवाज़ है। थोड़े इस तरह हो गया। मैं थोड़ा जगह बना रहा था, ऐसे सामने देखते। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही बात करूंगा आगे जाके। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मुल्क भर से सहाफ़ी जो हैं और उनकी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, जो फेक नहीं हैं, जो जाली नहीं है, जो हकीकी सहाफ़ियों की हकीकी नुमाइंदा तंजीमें हैं, मुल्क भर से आए हुए सहाफ़ियों के साथ यहाँ पर पार्लियामान हाउस के सामने और पार्लियामान के माथे पे लिखे हुए कलमे के साए में यहाँ पर एक बार फिर अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आमरीतों के ज़माने में भी इसी तरह सड़कों पर बैठ के सहाफ़ियों ने अपने हुकूक की जद्दोजहद की और आज इमरान खान साहब की हुकूमत है, जमहूरियत में हुकूमत है। तो बहुत अफसोस की बात है कि सहाफ़ी एक बार फिर अपने हुकूक के लिए उन्हीं इमरान खान साहब की सरकार में इसी पार्लियामान से चंद गज के फासले पे वज़ीर आज़म हाउस है। यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक सहाफ़ियों की आवाज़ पहुँच रही होगी। यहाँ PMDA के काले कानून के खिलाफ जो सहाफ़ी धरना दे के बैठे हैं कल से, उसमें तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। गुफ्तगू इन्होंने पहले भी की है, थोड़े से मजीद सवाल करते हैं। सर मैं टू द पॉइंट आपसे पहला सवाल करूंगी। हुकूमत कहती है, खासतौर पे वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि आर्मी चीफ ने जो तकरीर की थी यौम दिफा और यौम शोहदा पे, वहाँ पे उन्होंने जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात की थी और एक नई नैरेटिव जंग की बात की थी और एक नए साइबर वॉरफेयर की बात की थी और कहा था कि दुनिया भर में और पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद रियासत के दुश्मन इस तरह से नैरेटिव बना के हमला आवर हो रहे हैं रियासत पे, इसलिए PMDA का कानून बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहते हैं आप? दो चीज़ें, एक तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा हुकूमत है, जो हमारे वज़ीर आज़म है और जो हमारे वज़ीर है, उनको हमारा फ़ौज की क़यादत को इस तरीके से कोट ऑन कोट सियासत में घसीटना नहीं चाहिए। और जो मेरा दूसरा इसमें मौक़िफ़ है कि जो बिल्कुल पूरी दुनिया भर में जो एक दूसरे के खिलाफ ममालिक हैं, जो दुश्मने हैं, वो एक दूसरे के मुल्कों में मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हमले कर रहे हैं, मगर उन हमले के जवाब जो है कौन बेहतर दे सकते हैं? क्या ये फवाद चौधरी और उनके ट्रोल्स बेहतर जवाब दे सकते हैं? क्या ये जो एम्प्लॉइज वो तनख्वाह पे बिठा के उनके लिए ट्वीट्स करवाते हैं अपने शहरीज के खिलाफ, या वो आज़ाद राय रखने वाले सहाफ़ी जिनका क्रेडिबिलिटी है, जिनका दुनिया भर में उनका एक पहचान है, जब वो अपना मुल्क का दिफा करेंगे, जो कि वो ज़रूर करते हैं और करते रहेंगे, वो आपके सबसे बेहतर दिफा होगा, वो एक इम्पार्शियल दिफा होगा जो मानने वाले होगा। और अगर आप इस किस्म की कठपुतली से जवाब दिलवाते रहेंगे तो वो 5th जनरेशन वॉरफेयर के मुकाबला करने के काबिलियत नहीं रहा। क्या आप समझते हैं कि इस तरह के बयान दे के हुकूमत इदारों को मुतनाज़ा बना रही है, उनको घसीट रही है? बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने अब हम बहुत दफ़ा हमारे इदारे को अपने सियासी प्रॉप समझ के अपने आप को हुकूमत में जस्टिफिकेशन करने के लिए वक्तन फवक्तन, जैसे आपने इसी केस में कहा था, एक जो डिफेंस डे का स्पीच का क्या ताल्लुक है इनका इस कानून से? जब इन्होंने ये कानून इस डिफेंस डे का स्पीच से पहले तैयार किया था, उन्होंने वो ऑर्डिनेंस इस डिफेंस डे की स्पीच से पहले तैयार की थी, लेकिन ये जानबूझ के हमारे इस तकरीर को इसके साथ मिला के कुछ किसी किस्म का सियासी तहफ़्फ़ुज़ लेना चाह रहे हैं और इसी किस्म के बयानबाजी से, इसी किस्म की कोशिशों से हमारे वो इदारे जो हर पाकिस्तानी के इदारे हैं, वो किसी एक जमात के इदारे नहीं हैं, वो मुतनाज़ा हो जाते हैं। आप आवाम की सियासत करते हैं, आवाम की बात करते हैं, लेकिन जब आप इस तरह सहाफ़ियों के धरने में आते हैं तो आप पे अटैक करने के लिए हुकूमत कहती है कि आप सियासी मकासद के लिए इन मामलात को इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, हुकूमत कहती है कि बाकी सियासी जमातें आवाम की बात करते हैं, लेकिन हम आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून लेके आ रहे हैं। तो PMDA के काले कानून के खिलाफ किस हद तक आप जाने के लिए तैयार हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? और आप ह्यूमन राइट्स कमेटी के जहाँ तक ये हमारा सियासी फ़ायदा, वो आप बेहतर हमें बताएं।
हम तो हमेशा आज़ाद मीडिया की बात करते हैं और चाहते हैं कि आज़ाद मीडिया हो, और आज़ाद मीडिया होगा तो हम सब का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा। तो जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा और अगर उस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे लोग ध्यान करेंगे तो बेहतरी आएगी। ये पूरा मुल्क का फ़ायदा में होगा, किसी एक जमात का फ़ायदा में नहीं होगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में जब आमिर ज़िया के बाद शहीद बीबी ने प्रेस पे पाबंदियां उठाए थे, तो शहीद बीबी से पूछा गया कि ये तो दिन रात आपके खिलाफ ही लिखते हैं, किसी और के खिलाफ लिखते ही नहीं है, आपने मीडिया को आज़ादी क्यों दी? तो शहीद बीबी ने कहा कि ये तो 10 साल का भरास है, और अगर वो मेरे ऊपर निकालना चाहते हैं तो उनको निकाल दे दें। और हम उम्मीद रखते हैं कि आपके आने वाले जो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को चलाएंगे, हमेशा वो इस किस्म का ताकत रखेंगे कि वो तनकीद भी बर्दाश्त कर सके। और आखिरी सवाल, पार्लियामान की कारकर्दगी, चौथे पार्लियामानी साल में आज आप दाखिल हो रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं आप पार्लियामान की कारकर्दगी को इन 4 सालों में? मैं समझता हूँ कि तारीख में अपना इतना गैर फाल पार्लियामान नहीं देखा होगा। हर दौर में जो भी पार्लियामान आया है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड के मुताबिक एटलीस्ट अपना रूल्स फॉलो करते हुए, एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए काम चलता था। और यहाँ ना अपोजिशन को बोलने की मौका मिलता है, ना हमारे मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। हर चीज़ चोर दरवाज़ों से और ऑर्डिनेंस से भी पीछे ले आया जाता है। अगर कोई अच्छा ऑर्डिनेंस भी हो, अच्छा भी सजेस्टेड हो, उसको मुतनाज़ा बनाया जाता है, इसलिए अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। ये वो जगह है जहाँ अवाम के मसाइल हल होना चाहिए, और अवाम के मसाइल हल करने के बजाय हुकूमत के वज़ीर गाली देते हैं, ज़ातियात पे ज़ाती हमले करते हैं, और अवाम का मसाइल का हल निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस बाहरा PMDA खिलाफ सहाफ़िन जो एहतजाज, इन में PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे पहुतो। मुख्तलिफ सहाफ़िन हामिद मीर, गरीदा फारूकी ऐं आसमा शिराज़ी तरफ़ां उन सां जेका ख़ासि ॻाल्हि ॿोल कई वई, इन में जेके मुल्की सहाफ़त जा वॾा नाला आहिनि, सीनियर सहाफ़ी एहतजाज में शिरकत कनि पिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त इहो कारो कानून आज़ादी ऐं सहाफ़त ते हमिलो आहे, ख़बर ॾियण जे हक़ खे ख़तमु कयो पियो वञे। हुक्मरान नथा चाहिनि त शहरी आज़ादी सां इन मुल्क में ज़िंदगी गुज़ारिन। आवाज़ दॿाइण जे लाइ इहो तकरारी कानून आंदो पियो वञे।